Everyone, all of you together, please come and have. मैं श्रद्धा तिवारी कक्षा 10वीं की छात्रा आप सभी का तहे दिल से आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आयोजित कला उत्सव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। Good morning, respected principal sir and the judges of the day. I, Aditi Pandey of class 11, welcome for State Kala Utsav. I am extremely thrilled to be a host for today. Now we will have a traditional auspicious land lighting ceremony as a tribute to Ma Saraswati, the goddess of knowledge. I request principal sir and the judges to come upon the stage and light the lamp. शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपकाय नमस्तुते। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनोभिर्व्यशेर्महि देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जगतः पतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुदे मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। जयति वीणा वादिनी मां जयति वीणा वादिनी मां जयति जय जय जयति जय जय जयति वीणा वादिनी जयति वीणा वादिनी जयति वीणा वादिनी सप्त स्वर दस राग रूपा वेद स्वर छवि रूपा सप्त स्वर दस राग रूपा दिव्य स्वरिता छवि रूपा सकल मंगलदायिनी मां सकल मंगलदायिनी मां जयति वीणा वादिनी मां जयति वीणा वादिनी मां जयति वीणा वादिनी मां जयति वीणा वादिनी मां। Director of Art Education in Rego Government Education College.
I request Principal Sir to felicitate our guest R. Ravi with a green valse. मैं प्राचार्य महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय श्री विजय बहादुर जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। माननीय श्री विजय बहादुर जी वे न केवल एक प्रसिद्ध नृत्य विशेषज्ञ हैं, बल्कि संगीत में भी उनका महारत है। उनकी अपनी डांस अकादमी है जहाँ वे नए प्रतिभाओं को निखारते हैं। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। आचार्य जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। सादर आमंत्रित है संगीता देवी आचार्य जी का। वे एक संगीतकार, फिल्म निर्माता, निर्देशक, गायक और प्रवक्ता और लेखक हैं। It's time to begin. We are honored to have our prospective principal sir to deliver the welcome address. Please welcome. Please put your hands together for Principal Sir. Namaskar, warm welcome to all of you present here. We, all the members of Vidyalaya Assembly KV number 2 Port Blair, welcomes all the respected jury members, escort teachers and all the participants. A very warm welcome all of you. And first I want to introduce about the program and the history of this program. Initially, the Rashtriya Ekta Parv was celebrated as Social Science Exhibition. Thereafter, the name changed Social Science Exhibition cum National Integration Camp. After that, the name again changed with National Integration Camp and added in Hindi Rashtriya Ekta Parv. Now, in Rashtriya Ekta Parv, it is divided into two groups. One is EBSB, Ek Bharat Shresth Bharat. Another part is KVS Kala Utsav. In Kendriya Vidyalaya Sangathan Regional Office Chennai, there are 52 KVs, and all the KVs are divided into 7 clusters. Each cluster have 7 to 11 schools. Our cluster is 7th one. There are only 2 schools, Kendriya Vidyalaya number 1 Port Blair and Kendriya Vidyalaya number 2 Port Blair. Our paired state is Jammu and Kashmir and Ladakh. So all the events are based on Jammu and Kashmir and Ladakh. In Group A, EBSB, the objective of EBSB, Ek Bharat Shresth Bharat, is to celebrate the unity in diversity of India. As we know, there are many states. In each state, there are varied culture, varied traditions. So we still are united. So for that purpose, we are just celebrating the events. Second objective of the EBSB is showcase the culture, costume, tradition of various states for enabling people to understand and appreciate the diversity of India. So under this event, under this group, the events are group dance, group song, display of project and artifacts, and on-spot painting. The second group is KVS Kala Utsav. The objective of Kala Utsav is to promote art in education, nurturing and showcasing the artistic talent of the students, and provide a platform to students of Kendriya Vidyalaya Sangathan to represent their talent at national level. Actually, at the cluster level, the students who got selected, they will participate at regional level in Chennai. After selection from the regional level, students get chance to participate at the national level. Under this group, Kala Utsav, there are events, vocal music, instrumental music, dance, theatre, visual arts, and traditional storytelling. There are 38 students from Kendriya Vidyalaya number 1 plus 4 sport teachers are participating here, and 43 students from this Vidyalaya are participating in these events.
I thanks to all the jury members who took time for us from their busy schedule. I also thanks to Manoj sir to arrange the jury members out of the Kendriya Vidyalaya for fair selection of the participants. I hope all the participants will enjoy the event and will show the full of energy of today's event. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. You may have your seat now. जैसा कि प्राचार्य महोदय ने बताया, एक भारत श्रेष्ठ भारत एक मूल्यवान पहल है जो पूरे भारत के लोगों को विभिन्न राज्यों को विविध संस्कृतियों और परंपराओं के बारे में जानने और उनकी सराहना करने में मदद करेगी। भारत एक है तो क्यों हम अनेक है, हरा परिधान है इसका तो क्यों विविध हमारे भेष है, पक्षियों की मधुर आवाज से गूंजती कि तू हमारे मन में ये द्वेष है, दया प्रेम करुणा की धरती ऐसा हमारा देश है, धरती माँ के बच्चे हैं हम सब शायद जानना अभिशेष है, इसलिए धरती माँ को अपनी माता होने पर खेद है, जिस दिन एक भारत के बच्चे हम सब एक परिवार बन जाएंगे तभी हर कोई कह सकेगा हमारा भारत सबसे श्रेष्ठ है, हमारा भारत सबसे श्रेष्ठ है। कला की महफिल में आज रंगों की बहार है, हर दिल में उमंग, हर चेहरे पर प्यार है, संगीत की धुन, नृत्य की ताल, आओ मिलकर मनाएं ये सांस्कृतिक त्योहार है। हमारे पहले प्रदर्शन में हम देखेंगे समूह नृत्य कला। यह नृत्य हमें उस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराएगा। तो तालियों के साथ स्वागत करें केवी नंबर 2 पोर्ट ब्लेयर का।
क्या शानदार प्रदर्शन था। नृत्य कला से झलकती संस्कृति ने सचमुच मन मोह लिया। सोने की चिड़िया जो था कह रहा था, ऐसा भारत हमारा है, तलतलता से ही हमको इसको फिर से समृद्ध बनाना है। इतनी मनमोहक प्रस्तुति के बाद अब केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के बच्चे एक राष्ट्रीय समूह नृत्य लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। और कश्मीर का पारंपरिक लोक नृत्य लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इस नृत्य का नाम है रॉक। आशा करती हूँ कि आप इसका भरपूर आनंद उठाएंगे। धन्यवाद।
stage. Let's give a big round of applause for the vocal music. मैं जय सरकार आज आप सबके समक्ष राग बागेश्वरी को प्रस्तुत हूँ।
करती हूँ केवी नंबर 1 फुटवेयर को जोरदार तालियों के साथ। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 की छात्रा आपके समक्ष एक भजन लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसे गाया है भजन सम्राट जी अनूप जलोटा जी ने। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगेगा। जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार मुख है, बेकार मुख है, बेकार मुख है, जो रही व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है सजीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन गया करे।
सारे नाटक देखो। नमस्कार, आज हम केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 के छात्र आपके समक्ष एक नाटक लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसका शीर्षक है पेड़ बचाओ पेड़ लगाओ। नाटक का शुरुआत कुछ इस प्रकार होता है। ये जो सामने पेड़ दिख रहे हैं ना तुम्हें, कोई समझदार इंसान आए और इन्हें काट दे, मजा ही आ जाएगा। मैं जरूर सामने बढ़ पाऊंगा और पूरे विश्व में फैल जाऊंगा। उसी समय एक लकड़हारा आता है, जिसे देख रेगिस्तान खुश हो जाता है और पेड़ घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अरे देखो देखो मूर्ख इंसान हमें काटने आ रहा है। ये मूर्ख इंसान हमें काटने नहीं आ रहे, बल्कि ये अपने आने वाली पीढ़ी की खुशियों को काटने आ रहे हैं। वो कैसे? आज ही मूर्ख इंसान पेड़ काटेंगे तो कल बारिश के लिए तरसेंगे। हर तरफ सूखा ही सूखा होगा, बारिश के लिए तरसेंगे ये लोग। फिर भी ये हमें क्यों काट रहे हैं? लालच, इंसान का लालच उसे अंधा कर देता है, उसे आने वाली तबाही नहीं दिखती। ये जो तुम पीछे रेगिस्तान देख रही हो ना, ये भी हमारी मिट्टी का इंतजार कर रहा है ताकि ये आगे बढ़ सके। ये मूर्ख इंसान कब समझेंगे? अरे समय बहुत हो चुका है। मुझे इन पेड़ों को काटकर पैसे कमाना है। अभी तो मुझे पूरे जंगल को काटना है। हा हा हा, मजा आ गया। ऐसे तो मैं पूरे विश्व में फैल जाऊंगा। लकड़हारा पेड़ काटता है और चला जाता है और रेगिस्तान आगे बढ़ जाता है। रेगिस्तान को आगे बढ़ते हुए देख एक समझदार इंसान आता है और कहता है कि देखो तो जरा, रेगिस्तान कितना आगे बढ़ चुका है। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दे तो पूरी की पूरी जमीन बंजर हो जाएगी। लोग तो ऐसे ही पानी के लिए तरसेंगे। चलो, आपसे कोई पेड़ लगाए या ना लगाए, मैं तो हर महीने एक पेड़ अवश्य लगाऊंगी। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ मैं पेड़ काटते काटते थक गया और तुम पेड़ फिर से लगा रहे हो। पता है आबादी कितनी बढ़ चुकी है? कहाँ रहेंगे ये लोग? अगर हम अपने स्वार्थ के लिए पेड़ काटेंगे तो आने वाली पीढ़ी को खाना कैसे मिलेगा, पानी कैसे पिएंगे? पूरी की पूरी जमीन बंजर हो जाएगी। क्या तुम मूर्ख हो? क्या मैं तुम्हें मूर्ख लगता हूँ? मूर्ख नहीं हो तो क्या हो तुम? भला कोई अपने आने वाली पीढ़ी को इतना दुख देता है क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे पेड़ काटना है और पैसे कमाना है। मूर्ख इंसान पेड़ लगाते हैं, समझदार इंसान उसको काटते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं जरूर एक दिन पूरे विश्व को राज कर पाऊंगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, कुछ नासमझ इंसान ऐसे ही पेड़ काटते रहे। वे नहीं समझ पाए कि उनके साथ भविष्य में क्या होने वाला है। एक साल बाद अब तो मैं पूरे विश्व में फैल चुका हूँ। जमीन बंजर हो गई है, ना ही कहीं हरियाली है, ना ही यहाँ बारिश हो रहा है। लोग तो पानी के लिए तरस रहे हैं। अब तो यहाँ मेरा ही राज है। मैं थक गया। बहुत उसका पेड़ काटना, अभी मुझे पानी पीना है। कहाँ है पानी? अरे इसमें तो पानी ही नहीं है। चलो वहां देखता हूँ। अरे इसमें भी पानी नहीं है। चलो तालाब में जरूर पानी होगा। अरे यार तो पानी ही नहीं है। अब मैं कैसे पानी पीऊंगा? अब मैं क्या करूं? जैसे कि हम देख सकते हैं, लकड़हारा पानी के लिए तरस रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि गांव वाले किस प्रकार के बाधाओं का सामना करते हैं। माँ हमको प्यास लगा है, पानी दीजिए। पानी चाहिए? एक मिनट जरा देख के बताते हैं। ये क्या? ये तो पूरा खाली है। चलो तालाब में जाके देखते हैं, शायद वहाँ तुम्हारे पीने के लिए पानी मिल जाए। ये क्या? ये तो पूरा का पूरा तालाब सूखा पड़ा है। अब मैं अपनी बेटी को पानी कैसे दूँ? माँ मेरे को चक्कर आ रहा है। अरे ये क्या हुआ? अगर उस दिन उस लकड़हारे ने पेड़ नहीं काटा होता, पूरी जमीन को बंजर नहीं किया होता, तो पूरी की पूरी जमीन आज हरियाली से भरी होती। आज मेरी बेटी को बिना पानी के बेहोश नहीं होना पड़ता। जैसे कि हम देख सकते हैं, गांव वाले कुछ इस प्रकार के बाधाओं का सामना कर रहे हैं। अगर उस दिन वे लकड़हारा पेड़ नहीं काटा होता तो आज इन्हें इस प्रकार के बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो चलिए शपथ लेते हैं कि हम अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएंगे। और
देखभाल भी अवश्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मार्बल करती है जिसको शालीमार बाग historical site as well as tourist attraction and Kashmir. We directly present Bhagwan Viman, so we already added some elements of it and it's handcrafts Jammu and Kashmir paper mache. It's all made up of leaves. Apple farming, which helps in economic particular product from Kashmir, which is, have you represented that? No? Okay, but you know it. That's fantastic. Yeah, Kashmiri saffron is very famous. manufacturing barley and its shikara, mountains, and we try to present cultural diversity of whole India and it's India's history. Very beautiful. It's been really nice. Very nice. That's also attached to project file. Much about it you can see. You can just explain it. You have basically written both about Jammu and Kashmir and Andaman. It's a comparison that you've done. Have you mentioned the Kawa here? Yes, ma'am. Yeah, no. You know what about it? And the instruments. Yeah. I don't have the time to read through, but I can see that you've done your homework. Congratulations. Thanks very much. We tried our best. I can see that. Very pretty. तो ये जो एयरबेस है ना हमने उधमपुर एयरबेस का बनाया। ये मेनली जो है उधमपुर एयरबेस का बनाया इस एयरबेस में जो पूरा सर्विस है कॉन्क्रीट का है और ये एक ही सिंगल एयरबेस है। ये 2066 से अब होगा एंड ये 'एयरक्राफ्ट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल तो कोऑर्डिनेट्स जो है उसको या तो ट्राई कर दिया और उससे पेट्रोलिंग सॉर्टिंग जा रहा है। फिर अगर आगे देखें फायर ब्रिगेड ये कोई भी एक्शन टीम का रहता है, इसको हम क्रैश फायर टेंडर बोलते हैं CFT। और अगर उसके आगे देखते हैं आप तो यहाँ पर हमें एक टावर मिलेगा। ये लोकल फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है फॉर ऑल द बिल्डिंग्स टू कनेक्ट विद ATC। एंड मैम अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें छोटे छोटे हर जगह पे रहेंगे मैम स्ट्रक्चर्स। ये बंकर्स है for providing any shelter from an aerial attack or an air strike which is done on the airbase. मैम ये important documents as well as important VIPs और VVIPs persons जो भी अभी एयरबेस पे हैं वो इसमें shelters ले सकते हैं। ये मैम जो अंडरग्राउंड रहता है ये अंडरग्राउंड होता है मैम ये ऑलमोस्ट 15 to 16 किलोमीटर्स वाइड रहता है अंदर से। और मैम अगर आप देखें तो ये हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं ये अभी ऑन ड्यूटी नहीं है। ये एक्चुअली जो है हमने ALH-M का जो है एयरक्राफ्ट जो भी ऑन आने वाला है इंडिया के अंदर जो कि इंडियन मेड फाइटर है, 5th जनरेशन फाइटर है मैम। ये स्टेल्थ रहता है और मैम ये बॉम्बिंग एबिलिटीज़ इसकी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हैं। ये वो हमारा DRDO है एंड जो HAL है वो रशियन कंपनी सुखोई एविएशन के साथ मिलकर इसको बना रहा है जो कि मैम एक काइंड ऑफ कॉपी या फिर प्रोटोटाइप आप बोल सकते हैं जो कि Su-57 फिलिंग का रहेगा। और अगर मैम आगे हैं तो ये हैंगर रहेगा मैम। ये हमारा एक ही स्क्वाड्रन में हैंगर रहता है जो कि डिपार्चर के पास रहता है मैम। ये जो आप रेड लाइन देखते हो ये डिपार्चर बोलते हैं मैम इसको। एंड मैम ये जो येलो डॉटेड लाइन है इसको हम टैक्सी पैथ बोलते हैं।
जो कि पायलट को प्रोवाइड करता है एक पर्टिकुलर पार्ट टू गो टू ऑन द रनवे। और मैम अगर आप इसकी बात करें तो मैम ये आप जो शॉर्ट अपेज देख रहे हैं मैम, ये पाथ के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो होता है मैम, ये चार्टी बने ब्रावो बने ब्रावो टू। ATC प्रोवाइड करता है कि आपको सो एंड सो नंबर एयरक्राफ्ट को सो एंड सो पाथ वे से सो एंड सो रनवे में जाना है। सो मैम मूविंग फॉरवर्ड टू द डिफेंस स्टेशन, हम जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है मैम, ये जो नीचे वाला सेक्शन है वो डिफेंस स्टेशन है। इधर मैम मेनली द पेपर वर्क हैपेंस, जो कि हमें फ्लाइट टाइम जो होता है या फिर हमें कौन से फ्लाइट को कब एयरबॉर्न करना है, कोई मिशन एग्जीक्यूट करना है, फिर कुछ भी हमें पेट्रोलिंग करनी है, तो उसके पेपर्स यहाँ पर हैं। उसके ऊपर मैम यहाँ पे हमारे पायलट्स रेस्ट करते हैं, या फिर कोई भी अगर जिसके पायलट बिफोर अंडर 2 आवर्स सॉटी है तो यहाँ पे आके रेस्ट कर सकता है। और जो सप्लीमेंट पायलट्स होते हैं, इनकेस ऑफ इमरजेंसी अगर हम एग्जांपल लेके चले, इस एयरक्राफ्ट का हमें हमारा जो पायलट है वो ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी इज नॉट एबल टू कम, देन द अनदर पायलट विच इज ऑन स्टैंड बाय विल टेक ओवर। एंड आई मूविंग फॉरवर्ड टू अवर रडार सिस्टम। यू कैन सी मैम यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स हैं। एक स्ट्रक्चर मैम प्राइमरी स्ट्रक्चर है एंड अनदर वन इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। मैम जो प्राइमरी है वो 24/7 ऑन रहता है, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो मैम हमारे उसके लेता है अगर कोई भी बाई चांस अगर ख़राब होता है तो हमारा जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो टेक ओवर कर देगा। और मैम अगर फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक फ्लाइट को रिक्वेस्ट करती है ATC से कि हमें लैंड करना है आपकी एयरफील्ड पे, सो दिस विल मैनेज दैट फ्लाइट एंड दिस विल मैनेज द डिफेंस फ्लाइट्स which are roaming in the airspace. Ma'am, moving forward, you can see ma'am ये एक MiG-21 Bison है. Ma'am, this is an 3.5 generation aircraft. Its speed is 2.5 Mach, which is 2.5 times the sound. It can carry air-to-air missiles, AMRAAMs, and air-to-ground bombs. And ma'am आगे आए तो ये medical center है ma'am. This is inbound medical center ma'am. This will provide any medical support for the persons of quick reaction team and Air Force. And now moving forward, here we can see our triangular flag representing glory and courage for our soldiers. Ma'am, here are 3 sheds as you can see. Ma'am, these are for the logistical support. These structure provide the spare parts of the aircraft, and for example ma'am, it's paint, it's canopy body, and ma'am it's engine spare parts. It can also carry an spare engine if we want to. And it also carries ma'am paint of the stealth aircrafts. And ma'am, moving forward, these 2 sheds are for the ornaments. As we know ma'am, ornament for humans are like watches, bracelets, bands and all. Ma'am, but for aircraft there are missiles and guns and bombs, air-to-ground bombs, air-to-air bombs. All that is for ornaments for aircraft. And these out can carry 30 mm, 40 mm, 46 mm, and 70 mm guns, calibrating upon 40 carbine, 68 carbine, and 78 carbines. Moving forward, ma'am, we can see the same squadrons aircraft ready for any emergency takeoff. For example, if an aircraft takeoffs and goes for a patrolling, and another force countries aircraft intercepts it, then these aircraft will provide aerial support and scramble as soon as the other aircraft intercepts it. Moving forward now, these yellow points are for the chopper. This we have made the Black Hawk 2, which is an US made Lockheed Martin aircraft. This is ma'am for using as well as cargo, rescue and also attack operations. This can carry out ma'am 30 mm guns, air-to-air bombs, AMRAAMs, and also the anti-tank missiles ma'am, which is very good for tanks. And ma'am, when an aircraft takeoffs, and always there is a chopper on standby, which provides any rescue mission if in case of ejection or an event of crash. Thank you ma'am.
as well as a communication center. Communication center, Okay. which is in Andamans, is akin to what is there in JNK. Do you know what is it called? It is Which called you the know so much, that's ATC. why I'm asking. It's called ATC. It's called ATC. ATC communicates with the particular station which is at Mount Hudson. So, because you are interested in this, that is why I'm telling you. It would enhance your knowledge. There is a particular mount called Mount Hudson. It is in Jakarta. It houses a very big dish which directly communicates with the ATC tower. It is called a VOR station. VOR is very high frequency, omnidirectional radio range. That is the one which communicates. And we have the same thing again in JNK. Good job. बहुत अच्छा जगह मैम जहाँ पे टूर के लिए बहुत लोग जा सकते हैं। यहाँ हम आपको उनके कल्चर्स, उनके वहाँ पे जो सीजनल वाइज जो फूड्स होते हैं वो सब दिखाते हैं। और जो वहाँ में वंदे मातरम ट्रेन है, हम इसमें ये सब सैटेलाइट है वंदे मातरम। तो यहाँ पे सैटेलाइट मतलब सोलर पैनल्स होते हैं। हम आपको इससे ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जो कि आगे जाके और डेवलप होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ में आप जैसे कि जो झेलम रिवर होते हैं, आप इसमें ये दिखा रहे हैं हम। और साथ ही साथ जो शिकारा जो है ना हम आपके लिए दिखा रहे हैं। मैम जो इसमें आप ये भी करना चाहते हैं कि एक जो जम्मू कश्मीर है वो भी डेवलप हो सकते हैं। और जैसे हमने अपडेट दिखाया है, हमारे जो ट्रेन है वो दिखाया, ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन सकता है जो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिकली और जो डेवलपमेंट है उसे बढ़ावा दे सकता है। ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर भी जो कभी कभार रेस्क्यू के लिए चाहिए रहता है वो तैयार है। पेपर को पीसेस में ब्रेक करते हैं, एक पूरा सोक करते हैं पानी में से, एंड देन उसके बाद एडिसिव अप्लाई करते हैं और शेप पे ये दोनों उसी से बने हैं डेकोरेटिव आइटम्स। इसमें आपने भी सजेस्ट करते ना ये इसमें ट्रेडिशनल आर्ट बनी जम्मू कश्मीर, एंड देन दिस इज पेपर मैग्नेट फ्रेश I'm not sure about it, ma'am, but I think Since you're representing the artifacts, see if the shikaras or these lignite products, if they have the geotag. actually India was paper biggest Which tools you have used? इससे tool क्या यूज किया इसके लिए tool? It is handcrafted ना? Handcrafted, okay. It's very neat, very neat. All these is done by yourself only? All of you students have done wonderful job. I'm very, very proud of you guys. When we were in school, our teachers used to help us with projects. And most of the time, okay, I'm sorry to say this to everybody, but when we were in school, most of our teachers would make everything into the most of the time, and my teachers are going to kill me that I'm telling you this. But since you guys have done an amazing job, clap for yourself. Very happy with you. हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के विद्यार्थी हैं। आज हम आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर कश्मीरी देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इस गीत का भरपूर आनंद उठाएंगे। धन्यवाद। Thank
स्मारक। ऐसे ही भिन्न संस्कृति को प्रस्तुत करने केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के बच्चे एक पारंपरिक कथा लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। घर फिरदौस पर रूहे जमीन अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अर्थात धरती पर यदि कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कश्मीर की, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं यहाँ उपस्थित अन्य सभी लोगों को मेरा सादर नमन। मैं वाफिया नदीम, कक्षा 10वीं की छात्रा, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 की ओर से आप सभी के समक्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में जम्मू और कश्मीर की पारंपरिक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। ये कहानी हजारों वर्ष पहले शुरू होती है, जब महर्षि कश्यप के नाम पर इस अनोखी घाटी का नाम कश्मीर रखा गया था। 8वीं शताब्दी से यहाँ ललितादित्य मुक्ता पीड़ जैसे कई महान शासकों ने शासन कर इसे एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया। शैव धर्म, सूफी संत, मुगल राज एवं सिख साम्राज्य को पराजित करने के बाद यहाँ अंग्रेजी शासन काल आरंभ हुआ एवं लाहौरी संधि के अतिरिक्त महाराजा गुलाब सिंह जी को राजगद्दी दी गई और वे कश्मीर के स्वतंत्र शासक बने। और फिर इतिहास उस शासनकाल का जिसके शासन में हुआ था कश्मीर का भारत में विलय। सन 1925 में महाराजा गुलाब सिंह जी के बाद उनके बड़े पुत्र ने केवल 30 वर्ष की आयु में संभाली थी राजगद्दी। जी हाँ, महाराजा हरि सिंह जी, जो जम्मू कश्मीर और डोगरा वंश के आखिरी शासक थे। उनका जन्म 23 सितंबर सन 1895 को हुआ था। अपने शासनकाल में उन्होंने अपने राज्य में बाल विवाह को रद्द करने एवं सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिए ठोस कदम उठाए थे। सन 1947 में उन्होंने कश्मीर को एक अलग देश बनाने के बारे में सोचा, परंतु पाकिस्तान के इरादे पहले से ही खराब थे और 24 अक्टूबर सन 1947 के दिन कबायलियों की आड़ में पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसके बाद महाराजा हरि सिंह जी ने भारत सरकार से मदद मांगी और 26 अक्टूबर सन 1947 के दिन उन्होंने भारत से जुड़ जाने का फैसला किया, जिसके बाद देखते ही देखते भारतीय सेना ने कश्मीर से कबायलियों और पाकिस्तानी फौज को खदेड़ निकाला और तभी से कश्मीर हमारे भारत देश का मुकुट बन गया, जहां पहाड़ों पे बिछी है बर्फ की चादर, जहां बागों में है महकता केसर, जहां झिलमिलाते झील का है पानी सुंदर, जहां चिनार की छाव में है ख्वाबों का समंदर, हंसी वादियों में है महकता फूलों का मंजर, ढलती शाम जश्ने बहारा है, कश्मीर धरती पे जन्नत का नजारा है, जन्नत का नजारा है। कश्मीर जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध संस्कृति के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हरे भरे बाग, बर्फ से ढके पहाड़ और बहती नदियां इसे अद्वितीय बनाती हैं। सुबह होते ही सूरज की किरणें पहाड़ियों पर छा जाती है। एक छोटे से गांव की छोटी सी लड़की जारा सुबह अपने माँ के साथ कुछ खास पारंपरिक व्यंजन बना रही होती है। उनके घर मेहमान जो आने वाले थे, लवासा, रोगन जोश, गोश्तपा, गाद, पुलाव, कावा आदि की खुशबू से पूरा घर खिल उठा था। जारा की माँ उसे बताती है कि कश्मीरी व्यंजन कई हद तक मध्य एशियाई एवं फारसी संस्कृति से प्रभावित है, जिनमें मुगलों एवं अरबों का खास प्रभाव नजर आता है। माँ जारा को ये बातें कश्मीर की घाटियों में बोले जाने वाली कोशूर भाषा में बताती है। काम खत्म करके जारा अपने गांव के बाजार में घूमने के लिए जाती है, जो अपने रंग बिरंगे पश्मीना शॉल और मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। बाजार में जारा एक कश्मीरी कारीगर से मिलती है, जिसकी कला में कश्मीरी संस्कृति के कई रंग छिपे थे। उसकी कला ये बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर रही थी कि कैसे ये कला कई पीढ़ियों से चली आ रही है एवं कैसे कश्मीर दुनिया भर में अपनी अद्भुत हस्तशिल्पी के लिए प्रसिद्ध है। बाजार में जारा एक वृद्ध बाबा से भी मिलती है, जो वहां के बच्चों को कश्मीर की खूबसूरत कहानियां सुना रहा था, जैसे डल झील की सुंदरता, वहां के फूल और शिकारे। बाजार से लौटते वक्त जारा अपने परिवार के साथ वहां के हेमिस त्योहार को देखने के लिए जाती है, जो पूरे कश्मीर में प्रसिद्ध था। जारा ने कश्मीर में कई त्योहार मनाए थे, जैसे बैसाखी, लोहड़ी, ट्यूलिप त्योहार आदि, परंतु हेमिस त्योहार की तो बात ही कुछ और थी। यहाँ नृत्य और संगीत अपनी अलग ही शैली प्रस्तुत कर रहा था, जो काफी सरल और शानदार था। रऊफ नृत्य तो बहुत प्रसिद्ध था
एवं जारा ने नृत्य समूह के साथ मिलकर मुखौटा नृत्य भी किया, जो पूरे कश्मीर में प्रसिद्ध था। जारा वहाँ ये जानती है कि कश्मीर कई महान कवियों और सूफी संतों का जन्म स्थल भी है, जिनमें लाल देद, शेख उल आलम इत्यादि शामिल है। इसीलिए तो कश्मीर को पीर गैर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है आध्यात्मिक गुरुओं की भूमि। बस इसी तरह कश्मीर की सुंदरता और संस्कृति जारा के जीवन का अभिन्न अंग बनकर उसे मंत्र मुक्त कर देती है एवं उसमें गर्व और प्रेरणा का भाव भर देती है। तो ये थी दास्तां हमारे प्यारे कश्मीर की। महर्षि कश्यप के समय से लेकर आज जो हम कश्मीर देख रहे हैं, उसने अपने इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। यहाँ कई शासकों के शासन काल भी बीते हैं, परंतु कश्मीर ने अपना अस्तित्व नहीं खोया। ये हमारे पौराणिक इतिहास एवं जीते जागते वर्तमान का प्रतीक है। अंत में बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि अनेकता में एकता है, अनेकता में एकता है, यही भारत की विशेषता है, यही भारत की विशेषता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पारंपरिक कथा वाचन हेतु जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए केवी नंबर 2 पोर्ट ब्लेयर का। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण्यं पदञ्जलि विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदे क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तो वस्तुनि। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्र बब्बलित्य दिव्य धूमुखे मदान्ध सिंधुर स्फुरत्व गुप्तरीय मेदुरे मनो विनोद मद्भुतं विभर्त भूत भर्तरी। भुजंगराजमालयानि बद्धजाट घोटकश्रिये चिराय जायतां चकोर बन्धुशेखर ललाट चत्वरज्ज्वलद्धनञ्जय। It's time to experience the rhythmic magic. Please put your hands together for the incredible talented instrumental music band of Kendriya Vidyalaya number 2 Port Blair. उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगे। हो गया जाने का
आज हम यहाँ पे आपके सामने एक भोजपुरी लोकगीत लेके प्रस्तुत हुए हैं। आज मैं और मेरे दोस्त दो भोजपुरी लोकगीत आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। दोनों का एक मिश्रण होगा। दोनों गीत के बोल है, पहले गीत का बोल है मोरे कलिया सुकुमार दो चुपजाना कंगनवा, और दूसरे गीत के बोल है दो घर के कंगारू व जननों बोले जाओ। धन्यवाद। आशा है कि आपको ये प्रस्तुति पसंद आएगी।
we were just discussing, when we were in school, English is fine, right? Yes. So when we were in school, in general, all our competitions had a lot of support from our teachers. You know? There was a we had a lot of support from the teachers, even when we were performing on stage, you know. Like the instruments, like मैं जब छोटी थी तो instruments बजाने के लिए कोई as such बच्चों के बीच में तो नहीं होता था. At least when I was a child, there were very few kids who were actually well conversant with using instruments as such. You guys are very lucky that you have teachers who teach you. You guys are very lucky that it's part of the curriculum. Number one. Secondly, when I was a kid, we had no formal training in dance. Whatever we learned, it was much later when we went to the mainland India. Again, you guys are very lucky that you're part of a school ensemble where you have it as a part of the curriculum. Arts, of course, is very important. But again, the craft inside, what I saw, the models, my God, fabulous. I was blown away with what the kids have made. I have blown away with the way the kids were explaining stuff. And they are very intelligent, my gracious Lord. I mean, हमें ऐसे लगता है कि हम बड़े हैं, हमें सब पता है, पर यहाँ बच्चों ने जो बताया मुझे आधे से ज़्यादा एक्चुअली मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था. This guy, the boy who was talking about the runway, the airport, at the naval station in JNK, wow, what amazing homework he has done. Congratulations, sir. Your kids are very good. Your kids are very good. About the competition, it's just a competition. You don't have to bother. Somebody obviously will be the winner, but then the participation is very important. There are just 2-3 things I want to tell you. If you are being given a theme of a particular state, please do a little homework. It becomes easier. Like for example, for the dance part and for the first performance that was there, what was it? It was the dance. Alright, the first one, absolutely first one. Alright. So usme, what we found was, of course, both the groups were very good. But one group, which of course you will come to know which one group had an element of authenticity, while the other, though it was very good, the element of authenticity was slightly lacking. So when you are performing as per a theme which corresponds to a particular state, I really request that you do a little homework, study a little bit and then go forward, because talented to aap sab phenomenally hain hi, but when it comes to stage, number one. Secondly, both the schools, the girls and boys are very talented. बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, बट कुछ बच्चे खुल के मुस्कुरा के कर रहे थे, कुछ बच्चे डर के कर रहे थे. सो जो बच्चे खुल के मुस्कुरा कर रहे थे, आपको पता है कि कौन बच्चे डर के कर रहे हैं. हेल्प देम आउट. You know, when you're performing together, when you're practicing together, you are a family. You need to perform on stage. Group performance है, आपका अकेला का नहीं है. तो आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, आई कांटेक्ट है जज के साथ, बहुत अच्छी बात है, पर आपके बाजू वाला बंदा है बंदी अगर नहीं कर रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि आप तो अच्छे हैं ही, आपको पता है, पर आपको अपने साथी का साथ देना है, उनको हाथ पकड़ के लेके चलेंगे तो आपका ग्रुप परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड तो मुझे नहीं बोलना चाहिए ऐसे, बट फिर भी ये जो लास्ट बैंड जिसने परफॉर्म किया, द इंस्ट्रूमेंट, दे आर प्रोफेशनल्स, दे आर रेडी टू टेक इट लाइक टेक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. एक्चुअली सर आप इनको बाहर भेजिए, आपका स्कूल पैसे कमाने लगेगा, इतना अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं बच्चे. थैंक यू सो मच. मैं हमारे बीच उपस्थित निर्णायक श्री विजय बहादुर महोदय जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और आशीर्वचन प्रदान करें. सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बधाई. आप लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है. मैं सही गलत पे नहीं जाऊंगा, जजमेंट तो आपने कर दिया है. एक्चुअली ये स्कूल से बहुत पुराना नाता है मेरा. मैंने यहाँ पर शायद 2011 में यहाँ का एनुअल डे भी सेट किया था. उससे पहले 2009 में भी कुछ फंक्शंस यहाँ मैंने किया था. हाल ही में हम लोगों ने यहाँ पर HIV का एक अवेयरनेस कैंप भी किया था. एक्चुअली कुछ बातें हैं जो मैं बोलना चाहूँगा. जो परफॉर्मर होते हैं स्पेशली स्कूल के, जब उनको स्टेज मिलता है तो यूज़ करिए उसे. जितना खुल के डांस कर सकता है डांस करिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए स्टेज है. हम तो बस बैठ के जज करेंगे कि कौन गलत है कौन सही है. हाँ, ये बात है कि फर्स्ट सेकंड में बस 19-20 का फ़र्क होता है. ऐसा नहीं है कि अगर जो जीतते हैं वही विनर है. मुझे याद नहीं है कि मैंने कौन सा कंपटीशन जीता था,
लेकिन आज मैं बैठ के आपके सामने जज कर रहा हूँ। काफ़ी सारे इवेंट हम यहाँ पर करते हैं और बस काम करिए, वर्क करिए अपने ऊपर और इसी तरह आगे बढ़िए। हमारा आशीर्वाद आपके जो टीचर्स हैं, सर है, उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। इसके साथ ही मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद महोदय, आपके वचन से हमें बेहद प्रेरणा मिली। Now may I call R. Ravi sir to come up on the stage and address us. गुड आफ्टरनून सभी को। थैंक यू सर मुझे यहाँ बुलाने के लिए। दिस इज माय फर्स्ट, मेरा पहला बार है जो जजमेंट करता है। सभी ने बहुत अच्छा से किया है काम, तो सभी का काम बहुत बढ़िया था। तो उसमें से जजमेंट करके किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना थोड़ा बहुत तकलीफ है, क्योंकि मैं पहला बार किया हूँ। मुझे पता चल रहा है कि ये 1-2 मार्क्स से कुछ लोग पीछे रुक जाते हैं, बस 1-2 मार्क्स का फर्क पड़ता है। लेकिन तो ये कॉम्पिटिशन है तो ऑब्वियसली करना पड़ता है। थैंक यू। तो सभी का काम बहुत बढ़िया था। Who will announce the winner? So please come on the stage and share your exciting results with us. तो रिजल्ट ऐसा रहा, मैं तो सोचा कि सभी का इंडिविजुअली होगा, तो पता चला कि स्कूल वाइज है। तो ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन में KV2 89 मार्क्स पे KV1 ऑन द स्पॉट पेंटिंग 82। नेक्स्ट इवेंट विजुअल आर्ट 3D और 2D मॉडल है, इसमें KV2 KV1 आउट ऑफ 88। रिजल्ट की ओर चलते हैं। तो पहला जो कैटेगरी था वो ग्रुप डांस का था। कश्मीरी जितने भी आप लोगों ने जो लोक नृत्य किया है कश्मीरी का, उसमें आपका जो फर्स्ट प्राइज है तो फर्स्ट प्राइज है KV1। Group song, the winner is KV2. The winner is KV1. Instrumental music, the winner is it's KV2. For dance, it is KV1. For theatre, जो थिएटर के पार्टिसिपेट थे जिन्होंने फर्स्ट प्राइज मारा है वो है KV2। और जो लास्ट कैटेगरी था
ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग। एक्चुअली जो लास्ट में स्टोरी टेलिंग हुआ था उसमें 2 पार्टिसिपेंट थे। एक्चुअली एक ने हम थोड़ा कंफ्यूज थे कि क्योंकि एक ने सिर्फ डांस परफॉर्मेंस किया था। स्टोरी टेलिंग उसमें एक्चुअली वो रावण स्तुति थी जो उन्होंने परफॉर्म किया यहाँ पर, तो हमें नहीं लगता था कि वो एज ए स्टोरी टेलिंग था, तो हम लोगों ने उसमें कोई मार्क्स नहीं दिया है, ना मैडम ने दिया ना मैंने दिया है। तो अगर सिर्फ इसके बाद इसमें पार्टिसिपेट जो बचा था सिर्फ एक जो रियल स्टोरी जो टेलिंग की थी कश्मीर के बारे में, जो कस्टडी स्टोरी जो बता वो है KV1। थैंक यू। Every one of you for your presence and contribution to the tremendous occasion. First, I would like to thank an energetic principal for your able guidance and support. So, thank you. Next, I would like to thank guests and judges, Shri R. Navi, lecturer, Taboo Government College of Education, Ms. Samita Veda Acharya, Mr. Vijay Bahadur, for accepting our invitation to be the judges of today's program. Thank you, each one of you. Next, I would like to thank all the participants and all the teachers who are behind this program. And you all made a wonderful program. Thank you for all the program in charges and participants. Last but not the least, I would like to thank each one of you for your kind cooperation for making this program a successful. And special thanks to KV1 participants. You all performed very wonderfully.